Rahim, starting with the great name of Allah, the most merciful and the most beneficent. अच्छा, आज मतलब वही प्रोसीजर है। अगर आपको मैं बता दूं कि वन लेक्चर हैज़ बीन ऑनलाइन, ठीक है, एंड दिस इज़ नो इन द क्लास, क्लियर। तो ऑनलाइन है वो आप उधर देख लेंगे, ठीक है, आराम से देख लें, रिलैक्स, ठीक है। जो चीज़ मैंने की है वह सारा चीज़ उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी कनेक्शन में कि वो भी आपको थोड़ी समझ आ जाए और आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ लें। तो आज के लेक्चर को मैंने थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना है, ज़्यादा एडवांस में आज की क्लास में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। मकसद ये है कि कोशिश मतलब इस क्लास में मेरी ये है कि हम क्या कर लें कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें और आपकी जो मिनिमम कोर्स है वो कवर हो जाए। सो इन टुडेज़ लेक्चर I am discussing the if statement. क्या? if statement. नज़र आ रहे लेकिन बहुत छोटा, हाँ, तो हम इसका फ़ोन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 80 मज़ीद बड़ा कर दूँ? चलिए ठीक। पर्पस क्या है आपको पता है? टू टेक अ डिसीजन। हाँ, मज़ीद लिखने की ज़रूरत मुझे बताने की नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड फ्राम द प्रीवियस सेमेस्टर्स, क्लियर। साइंटेक्स क्या है? It is like the C++, but I think you have not studied the C++, you have studied the Python. So that's why let me give you a flavor of that. So if open bracket, small parenthesis, that is called parenthesis, condition, then middle parenthesis and close parenthesis. Here you are writing 1 and semicolon, statement 2 and semicolon, and so forth. Clear? No. This is one thing. Let's have one other statement that is called if else statement. Purpose, again, if one part then is false, the other part is executed. Yes, but in the first case, only in true the statements are executed, and false nothing will happen. Clear? Or these statements will be skipped. In this case, what we say that if one part condition is true, one part executed, otherwise the other part is executed. So again, if condition open parenthesis and close parenthesis, and open, clear, else means that if this part is false, if the condition is false, then you are executing this part. Say for example, if the statement 1 and 2 are in part 1, and 3 and 4 are in part 2. So in that similar case, what will happen? The first two statements will execute it, and otherwise the rest of the two statements will then execute. Clear? Yes. Or is there any doubt? Now in connection to this, let me have a sample template, clear, that has been designed in lecture number 4. I will just show you that sample template. I will express these examples, okay, along with the revision of lecture number 4. बात समझ आ रही क्या?
तो ये है कि आपका कोर्स भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और लेक्चर 4 भी आपका रिवाइज हो जाएगा. Do you understand what am I saying? Now let's see, we have an example over here, that is, if A is equal to 10 and B is equal to 20, then if condition A is greater than B, so what will you write? Message box dot show क्या A is greater than B. Clear? Else क्या the same अगर दोनों इक्वल हो तो फिर क्या होगा? मतलब अकॉर्डिंग टू दिस the same message will be displayed. Do you understand? So this is a bit bug with the programming. Clear? Let's see, and we will deal it later on also. Now let's come to D drive visual programming. This is BS2, Control C and Control V, and this is lecture number 5. Clear? I am making the different tracks for every lecture to keep you with on practice with the coding also. क्योंकि नॉर्मली फिर ये होता है कि लेक्चर 1 में क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही, ठीक, तो वो फिर उसको ये है कि लेक्चर 1 पढ़ना है तो उससे रिलेटेड आपको कोड भी मिल जाएगा, ठीक है. ये एंड ओपन. So this is the solution explorer. This is what I did in lecture number 4, a simple calculator. Clear? What is done? Let me just run it, okay? A simple calculator, and say for example 13 and 15, and click on add. So you get with subtract you get. Confusion तो नहीं है? Okay. Let me do it with this interface, the if statement. Clear? By adding a button comparison, number comparison. What? The number comparison. For this purpose, what am I doing? That let me add a button over here. ये मैंने ऐड कर दिया. क्लियर? मैं चाहता हूं कि मतलब आपकी लेक्चर नंबर 4 की भी साथ में प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना. अच्छा, अब इसका जो है प्रॉपर्टी पैलेट मैंने क्या कर दिया, इसका नम कंपैरिजन, ठीक, मीन्स नंबर कंपैरिजन. And the font normally or conventionally I am. अच्छा अब देखें ये बड़ा हो गया तो गायब हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ ताकि मतलब ये डिस्प्ले हो जाए. सो नंबर कंपैरिजन. नाउ लेट मी चेंज द नेम ऑफ द बटन आल्सो. ये देखें ना, दिस इज अ स्टूपिड अप्रोच दैट आई ऑलवेज ऑब्जर्व. बटन आप बना लेते हो मीन्स के वेरिएबल्स, आप उसके नाम चेंज नहीं करते, तो फिर होता है कि इसके डिफ़ॉल्ट नेम रह जाते हैं. एक्सक्यूज मी, इसके क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट नेम हो जाते हैं. तो डिफ़ॉल्ट नेम में नुकसान ये होता है कि फिर जब आप प्रोग्रामिंग करते हो आपको पता नहीं चलता कि किस पर्पस के लिए क्या है. समझ आ गई? तो मीन्स कि अगर आप प्रॉपर नेम देंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी कि अब ये वाला बटन है, ये वाला टेक्स्ट फील्ड है, तो ये किस पर्पस के लिए है.
मसलन अब देखिए ये मैंने कर दिया, अब इसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, BTN कंपेयर, क्या BTN कंपेयर। तो देखिए टाइटल भी कंपैरिजन है, कंपेयर है, और नाम भी इसका क्या हो गया, BTN कंपेयर। अब ये देखें ना, ये फर्स्ट नंबर है, क्या है, तो अब देखिए इसका क्या है, num1, क्या है इसका, ये क्या है, num2। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये थर्ड क्या है, रिजल्ट है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, TXT रिजल्ट। तो देखिए हर चीज समझ आने वाली है, ठीक। अब मैं क्या करना चाहता हूं, कंपेयर करना चाहता हूं कि ये नंबर और ये नंबर आपस में कंपेयर करूं मैं, और जो ग्रेटर हो डिस्प्ले कर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि होगा क्या, ये तो समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इधर मैंने ये लाइन खींच दी, द टेक्स्ट बॉक्स is storing only text value। क्या मतलब है इसका, ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। समझ आ गई? अगर न्यूमेरिक आप लिखोगे उसको वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है। इफ यू गिव सम न्यूमेरिक वैल्यू इट विल कंसिडर इट एज अ टेक्स्ट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है ना। ये ऐड के बटन के बैक पर मैंने कुछ लिखा है, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं। क्या करता हूं मैं, इसको कमेंट कर देता हूं। ये मैं कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ये और ये वैल्यू मैं ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ। तो आसान तरीका है क्या, TXT result dot text is equal to TXT num1 dot text plus TXT num2 dot text। इस बात को समझाने के लिए, ठीक है ना, मैं कर रहा हूं। अब देखो इसको मैंने कर दिया सेव एंड रन। सॉरी, अच्छा ये एक गलती मुझसे हो गई, ठीक है ना। ये जो है कंट्रोल X, ठीक। अच्छा, सिंपल कैलकुलेटर, ये देखे मैंने क्या कर दिया 12, और ये क्या, सॉरी चलो मैं इसको 12 ही लिख लेता हूँ। रिजल्ट क्या आएगा इसका, अच्छा मैंने ऐड, क्या आएगा रिजल्ट, 1 2 1 2 होना क्या चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए था, बात समझ आ रही है कि नहीं? क्यों 24 आना चाहिए, बिकॉज वी आर एडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेकिन मेरे पास 1 2 1 और 2 आ गया। क्यों कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इसमें जो कुछ भी लगा होगा, all these are treated as a text, not as a number। तो इसमें कंकैटिनेशन कर दी। मेरे ख्याल में इस बात की समझ ठीक। बाकी रिकॉर्डिंग में आप देख लोगे, ठीक है। मैं इफ स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना। Now let's come to the if statement and let me do it। कि if statement में मैंने करना क्या होगा, ये अब देखिए इसमें मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू इन नंबर 1 एंड वैल्यू इन द सेकंड टेक्स्ट फील्ड, कि कौन सी बड़ी है, और उसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो, यानी लिखे A is greater
B is greater or whatsoever is the case. Confusion है या clear हो गया? Now for this purpose, let me click on the num comparison button and let me write a code over here. ठीक? तो देखिए text values है ना, तो मैं इस तरह क्या कर लूँगा, int num1 कामा num2, दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए. क्या कर दिया मैंने? अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूं, num1 इज इक्वल टू txt num1 डॉट टेक्स्ट. ठीक, और num2 इज इक्वल टू txt num2 डॉट टेक्स्ट. समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है कि मैंने टेक्स्ट वैल्यूज को न्यूमेरिक में स्टोर किया, स्टोर नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा इस पर्पस के लिए, मैं टाइप कास्टिंग करूंगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइप कास्टिंग. तो तरीका इसका क्या है, कन्वर्ट डॉट टू एंट 16 सही क्या नहीं? सिमिलरली हेयर इन 16 क्लियर. देन आई विल राइट. ये फॉन्ट मुझे नहीं समझ आ रही कि किधर से बड़ा होता है यार. जी इधर नहीं, इसमें नहीं है यार. नहीं, अब ये फ़ॉन्ट्स एंड कलर ये आ गया है ना. लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे ना तो फिर वो आपको पता है कि आपको सही नज़र नहीं आएगा पूरा वो टेक्स्ट. ठीक है ना. अच्छा, अब आप क्या करें, इफ num1 ग्रेटर देन तो क्या करें आप इधर, ठीक है ना, txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, num1 is a greater. सही क्या नहीं? else क्या, num2 is a greater. Now let's see and check it. Say 12 and 23. num2 is a greater. Clear? If I write here 44, num1 is greater. If both are equal, then num2 is greater. होना क्या चाहिए? हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? So you can modify it. What will you do else if? What will you do in this case? क्या, num2 is greater than num1. तो फिर ये no write the else part. Clear?
both numbers are equal. Num1 and num2 are equal. Save and run and execute. Say 12. Num2 is greater, num1 is greater. num1 and num2 are equal. I think इस बात की समझ ठीक. Now let's have अच्छा add and subtract I have done in lecture number 4. सही. मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर कर लेता हूँ, बल्कि रिमाइंडर भी कर लेता हूँ. ऐसा सही है? आप भी खुश, वो भी खुश, वो भी नाराज, आप भी नाराज. ठीक है ना? न आप मुकम्मल खुश, न वो मुकम्मल खुश, न आप मुकम्मल नाराज, न वो मुकम्मल नाराज. दिस इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर. क्लियर? अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कन्वेंशनली मैं लिख लेता हूँ. आई एम राइट इट इन अ कन्वेंशनल फॉर्म, ताकि आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाए. txt result dot text is equal to txt num1 dot text divided by txt num2 dot text. अब देखें ना, टेक्स्ट तो टेक्स्ट पर डिवाइड नहीं होता ना. अक्लमंद के लिए इशारा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होता है. समझ आ गई कि नहीं? तो अब मैं चलो रन कर लेता हूँ, हो सकता है हो जाए. हाँ, उम्मीद तो रख नहीं. हाँ हाँ, स्ट्रिंग में ऑलरेडी है. इट इज ऑलरेडी इन. चलो देखते हैं. ठीक है ना? क्या करते हैं हम इसके लिए? इन रिजल्ट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर. रिजल्ट तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है ना. ये देखो ना, तीनों टेक्स्ट फील्ड्स है ना, तो सारे स्ट्रिंग में है, लेकिन डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकती. अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूं? इंट रिजल्ट एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया. ठीक. फिर मैंने क्या कर दिया? रिजल्ट इज इक्वल टू, ये इधर मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी. ठीक. और इसको मैं क्या करता हूं? उसी तरीके से कन्वर्ट डॉट टू एंड 16. समझ आ गई बात की या नहीं? एंड सिमिलरली के नहीं बोले. अब यहां पर मैं रिजल्ट लिख लेता हूं, लेकिन फिर नुकसान है एक. पता है क्या नुकसान है? हाँ, ये इसके अगर आप देखें ना, मैं इधर थोड़ा सा आपको शो कर दूं. ये चीज़ मैं दोबारा लिख लेता हूं. डॉट 2 and 16, 2 and 32, 2 and 64. अब आसान अल्फाज में स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, बिगेस्ट इंटीजर. मसलन अगर आपके पास छोटे वेरिएबल्स हैं, सही, छोटे ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, सो नॉर्मली 2 पावर 16 तक आपका इंटीजर वैल्यू चला जाएगा. समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अगर आप जो है किसी मतलब बैंक के लिए काम करते हो या किसी इंडस्ट्री के लिए काम करते हो, पॉपुलेशन के लिए आप काम करते हो, फिर तो आपके पास बिलियंस में ये वैल्यूज आती है, बल्कि इससे भी बड़ी आती है. समझ आ गई कि नहीं? हाँ. या अगर आपने क्रिप्टोग्राफी में कोई वो करना है, ठीक है ना, खासकर RSA और उसके फंक्शंस को ब्रेकअप करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक से बेशुमार वो, तो फिर आपको बड़ा इंट चाहिए. तो फिर ऐसी सूरत में फिर क्या होता है? 2 पावर 32 और 2 पावर 64 इंटीजर आप ले लेते हो.
समझ आ रही कि नहीं? फिर तरीका आपको पता है कि ये 2 बाइट्स को रिजर्व करता है, हाँ? ये कितने को रिजर्व करता है? 4 बाइट्स को, हाँ? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसी तरह ये कितने को करता है? 8 बाइट्स को। तो अगर आपको जरूरत नहीं और खामखा आप ये ले लेंगे तो फिर आपकी मेमोरी मिसयूज होगी। समझ आ रही है? हाँ या ना? नो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2 पावर एंड 16 में ले लेता हूँ, इंटीजर 16। आप अगर सी लैंग्वेज तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, अदरवाइज उसमें अगर आप पढ़ते तो फिर उधर है बाई डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज में इंटीजर जो है वो 8 बाइट्स का होता है, 8 बिट्स का, यानी कितना? 2 पावर 8 का होता है। समझ आ गई कि? तो बहुत छोटा है INT के साथ। फिर लिया क्या होता है? लॉन्ग। तो लॉन्ग जो है 2 पावर 16 का होता है। अच्छा, समझ आ गई? अच्छा, अब आप ये देख लें कि इसको भी मैंने कन्वर्ट करना होगा किस में? टेक्स्ट में। देखें ना, हाँ? ये क्यों मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा? क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जो है ये अगेन फिर स्ट्रिंग है, तो मुझे इंटीजर को फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि टाइप कास्टिंग हो जाए। फॉर दिस पर्पज व्हाट विल आई डू? कन्वर्ट स्ट्रिंग। समझ आ गई बात की कि नहीं? Now let me save and run this simple calculator. 12 divided by 2, रिजल्ट क्या आना चाहिए? मैंने डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के पीछे डिवाइड का फंक्शन लिख दिया। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई के पीछे तो इट इज व्हाट? स्टुपिडिटी। समझ आ गई कि? नाम से कुछ होता नहीं है, फंक्शनैलिटी से कुछ होता है। नेम इज मल्टीप्लाई बट इट परफॉर्म्स डिवीजन। सो वेरी सिंपल। I deliberately did this mistake to give you some knowledge. आपने मल्टीप्लाई करना है ना? Don't get confused. Just change the symbol. No, it will multiply. 12, 2. डिवीजन आपने करना है। Don't worry about. Just get that data at the back of the multiply. ये 3-4 लाइन है ना ये, ठीक? इसको किधर लिख लें? डिवाइड के बैक पर आप लिख लें एंड कन्वर्ट दिस सिंबल टू क्लियर। एंड नाउ अगेन इफ से 12 and 2 मल्टीप्लाई डिवाइड एड, फिर गलत आ रहे हाँ, तो इसको भी मैं सही कर दूं। ऐड था ना ये वाला, ठीक है ना? इसको मैंने हटा दिया, वही उसी तरीके से कर दिया मैंने, सारा एक जैसे हो गया। नो अगेन रन 12 2 ऐड सही है, सब्ट्रैक्ट करेक्ट, मल्टीप्लाई सही, डिवाइड बोले
कंपैरिजन सही है. Now let's come to remainder. What am I doing with the remainder? Click on the remainder, copy this whole, Control C, paste over here. Here add the percent symbol. The percent symbol. Clear? So percent is used for the remainder. Say, अगर 12 है divided by 6 है, what is the remainder? हाँ? क्या है रिमाइंडर? हाँ? वही खुदाया पाका. अगर 12 को 6 पर डिवाइड तो रिमाइंडर 2 आता है. क्लियर? हाँ? अगर ये 13 हो, क्लियर? 8 करेक्ट, सब्ट्रैक्ट, am I right? हाँ, अगर वो है तो फिर आप लिख लें कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड. बात समझ आ गई? इनफाइनाइट आता है. एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी आप कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो. काफ़ी आज के लिए. Okay, I am Dr. Saeed Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. Lecture number 4 तो आई थिंक कि अपलोड आज ये मैं सेव करता हूँ. ठीक है, 4 और 5 दोनों जो है मैं आपको USB में कॉपी कर देता हूँ. ठीक है.